بسم الله الرحمن الرحيم. علي مزر علي علي مزر علي مزر بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین. سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان یان و بان و شان کے ساتھ رواں و دواں ہے. نصف ماہ مبارک رمضان گزر چکا ہے، نصف ماہ مبارک رمضان بچا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے تمام مومنین کے لیے استغفار کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں. جھوٹ دعا کریں کہ پروردگار پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ضلالت و گمراہی میں چلا جاتا ہے، ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں، ایک انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس ایک جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. کبھی وہ سچ کی طرف رجوع نہیں کر پاتا ہے، اور ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آخر میں نتیجہ اس کا ہلاکت ہوتی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک حواری کے ساتھ سفر پہ چل رہے تھے، اور اس حواری سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تبلیغ کرنے چلو گے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں چلیں گے، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ تبلیغ کرنے چلیں گے. دیکھیں انسان کو جھوٹ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پرہیز کریں، کہ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار کبھی ہمیں جھوٹ بولنے کی توفیق نہ دے. ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم جھوٹ سے بچیں، ورنہ جھوٹ کے دلدل میں پھنستے ہوئے چلا جاتا ہے. آخر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، حواری سے پوچھا تبلیغ کرنے چلو گے؟ دنیا میں سب سے سخت کام تبلیغ ہے. تبلیغ کا کام بہت سخت ہے. اس تبلیغ کے کام میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، شدت بھی ہے، سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تب انسان ایک اچھا مبلغ بنتا ہے. لے کے چلے ساتھ میں، ابھی چند قدم چلے تھے، گئے، سفر کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے. ایک وقت آیا کہ جناب عیسیٰ نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی بھوک لگی ہے، کہ جاؤ بازار سے کچھ سامان خرید کے لے آؤ، کھانا کھایا جائے. کہا ٹھیک ہے، کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے. فوراً اس نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے پاس کتنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس 1 درہم ہے. کہا چلو 1 درہم میں دیتا ہوں، 2 درہم تم دیتے ہو، تمہارا، اور جا کے بازار سے کھانا لیا. وہ لے کے چلا 3 درہم. سوچنے لگا اللہ کے نبی کتنے چالاک ہیں، کتنے زرنگ ہیں، انہوں نے 2 درہم میرا خرچ کرا دیا اور اپنا 1 درہم خرچ کیا. 1 درہم اپنا خرچ کیا اور بازار گیا. بازار میں 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی. اس نے کہا کہ اس میں ہمارا تو 2 درہم لگا ہے اور اللہ کے نبی کا 1 درہم لگا ہے، لہذا ایک کام کرتے ہیں کہ 1 روٹی یہیں کھا جاتے ہیں، تاکہ آدھی پھر چل کے وہاں کھائیں گے. 1 روٹی اس نے راستے ہی میں کھا لیا. اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کھانا لے کے آ گیا، غذا آ گئی، آمادہ ہے، بسم اللہ. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کتنی روٹیاں ملی؟ کہ اللہ کے نبی 2 روٹی ملی. اب دیکھیں جھوٹ کی ابتدا شروع ہو گئی. اللہ کے نبی 2 روٹی ملی. کہا ٹھیک ہے چلو بسم اللہ، 1 روٹی تم کھا لو، 1 روٹی ہم کھا لیتے ہیں. دونوں نے روٹیاں کھائیں، اللہ کا شکر ادا کیا اور چلے. چلتے چلتے دریا کا سفر آ گیا. جناب عیسیٰ نے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ کہتے ہوئے پانی پہ چلنے لگے. کہا بھائی آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چڑھا ہوں، تم بھی آ جاؤ. جیسے اس نے قدم رکھا ڈوبنے لگا.
अल्लाह के नबी मुझे बचाओ वरना मैं गर्क हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा ये डूब कैसे रहे हो, ये डूबने का सबब क्या है? नबी के साथ होते हुए कोई डूबता नहीं। अल्लाह के रसूल मैं डूब रहा हूं, आप कहते डूबता नहीं। डूबते हुए इंसान से पूछा जो डूब रहा था कि बताओ कि रोटियां कितनी मिली थी? कहा अल्लाह के नबी रोटी तो दो ही थी, रोटी तो दो ही थी। कहा अब तुम पानी पे चल नहीं सकते, आओ मेरे शाने को पकड़ लो, मैं तुम्हें पार करा देता हूं। पार करा दिया और आगे बढ़े। जब चलते 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 एक ऐसे मकाम पे पहुंचे, जंगल से गुजरे, फिर इन लोगों को भूख लगी। अल्लाह के नबी भूखा हूं, क्या चाहिए? कहा गोश्त खाने को दिल चाह रहा है। अल्लाह के नबी ने दुआ किया, एक हिरन आई और उसको ज़िबा किया, उसका कबाब बना और दोनों ने खूब मिल के खाना खाया। जब दोनों ने मिल के खाना खाया और खा के शेर हो गए तो अल्लाह के नबी ने उस हिरन के तमाम हड्डियों को जमा कराया और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। वो हिरन दोबारा जिंदा हो गई और जिंदा हो के दौड़ती हुई चली गई जंगल की तरफ। तो यह सादे जो आने वाला था कहने लगा अल्लाह के नबी आपका अल्लाह के यहाँ कितना मर्तबा है, अल्लाह के नजदीक आप कितने तैयब व ताहिर है, अल्लाह के नजदीक आपकी अजमत क्या है, अल्लाह के नजदीक आपका मर्तबा क्या है कि आपने हिरन को बुलाया, हम लोगों ने उसको ज़िबा किया, खाना खाया और गोश्त और कबाब खाने के बाद आपने फिर दोबारा उसको जिंदा किया और वापस चली गई। कहनी ये मानते हो कि अल्लाह के नजदीक मेरा मर्तबा है? अल्लाह के नजदीक आपका मर्तबा है, आप बड़ी पहुंची शख्सियत है, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से है। अच्छा ये बताओ फिर रोटी कितनी मिली थी? क्या अल्लाह के नबी रोटी तो दो ही मिली थी, रोटी दो ही मिली थी। क्या अच्छा चलो और आगे चलते हैं। चलते चलते जंगल में आए। जब जंगल में पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने कहा जरा आराम करते हैं। चादर बिछाई, आराम करने लगे। उसके बाद कहा देखो यहाँ पे खजाना है, दफीना है, अगर चाहते हो खजाना मिले तो यहाँ खोदो। कहा अल्लाह के नबी कौन नहीं चाहता खजाना मिले? कहा खोदो। खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद जब खुदाई हुई तो वहां सोने की 3 ईंटें निकली। सोने की 3 ईंटें निकली। अल्लाह के नबी ने कहा देखो ये सोने की ईंटें हैं, इसकी बहुत कीमत मिलेगी। कहा अल्लाह के नबी सोने की ईंटें हैं तो कीमत तो बहुत मिलेगी। कहा अच्छा लो, एक ईंट तुम ले लो, एक ईंट हम ले लेते हैं और तीसरी ईंट वो लेगा जिसने तीसरी रोटी खाई है। जिसने तीसरी रोटी खाई है उसकी ईंट ये है। कहा अल्लाह के सर को झुका के कहा अल्लाह के नबी हमने ही तो खाया था। कहा यही तो हम तुम्हें समझाते हुए पूरे रास्ते आ रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, और तुम हर मंजिल पे झूठ बोलते हुए चले आए। लो ले जाओ, तीनों ईंटें तुम्हारी, ले जाओ, तीनों ईंटें ले जाओ। अब ये बहुत खुश हुआ, खुशी खुशी सोने की तीनों ईंटें लेके चला। अभी 10 कदम न चला था कि चोरों ने उस पर हमला किया और देखा 3 ईंटें सोने की लेके जा रहा है। डाकुओं ने लूटा और उसके बाद इसको कत्ल कर दिया और ईंटें लेके खुद भाग गए, फरार किया। चंद लम्हे दूर गए थे, 3 थे और डाकू भी 3 थे। डाकू 3 थे और उन तीनों ने ये सोने की ईंटें ले ली। जो खाना लेके चले थे कि रास्ते में रहसानी करेंगे, जो पैसा मिलेगा लूटेंगे, उससे और खाएंगे। जब सोने की ईंटें मिली तो कहा बहुत अच्छा हुआ, आज तो हम लोग खूब करोड़पति हो गए। एक काम करते हैं, इससे ईंटें छीन ली थी, इसका कत्ल नहीं किया था, इसकी ईंटें छीन ली थी। अल्लाह के नबी के साथ जो चला था, जो सहाबी नबी था जनाब ईसा का, उसे ईंटें छीन ली और उसको जंगल में भगा दिया। और उसके बाद तीनों इकट्ठे किया और उसके बाद जब इन लोगों को भूख लगी तो इन्होंने क्या किया कि 3 दिरहम इकट्ठा किया और कहा जाओ बाजार से खाना ले आओ। देखें गलत
काम का गलत नतीजा हमेशा निकलता है। अब ये तीनों आपस में मशवरा करने लगे कि कितना अच्छा होगा, हम लोग जो है आज सोना पाएंगे, 3-3 ईंटें पाएंगे, 1-1 ईंटें पाएंगे और बहुत बढ़िया होगा। जिसे खाना लेने के लिए भेजा था उसकी फिक्र में भी शैतान ने वसवसा किया, और जो बैठे हुए थे, जो सोने की रखवाली कर रहे थे, उनकी भी शैतान ने उनकी भी फिक्र में वसवसा किया। कहने लगे कि अगर हम एक काम करें तो 1 ईंट की जगह 1.5 ईंट पा जाएंगे, क्या करें? क्या जो इसको रोटी लेने के लिए भेजा है, अगर वो वापस आए, जैसे वापस आए उसका कत्ल कर दे तो 1 की जगह 1.5 ईंट मिल जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। जैसे का सही है, उधर उसके भी जहन में वसवसा हुआ कि अगर हम खाने में जहर मिला दें तो हमारी 3 ईंटें हो जाएंगे। उसने खाना खरीदा, खाने में जहर मिलाया और जहर आलूद करके खाना लेके चले। जहर आलूद करके खाना लेके चले और जैसे पहुंचे, वो 2 जो बैठे हुए थे, उन्होंने इसको गर्दन दबा के उसको मार दिया, मर गए। जब वो एक मर गया तो इन दोनों ने कहा बहुत अच्छा है, एक को मार दिया, चलो लाओ खाना खा लेते हैं, उसके बाद अपने घर चलेंगे। उन्होंने खाना खाया, खाने में जहर था जहर था, दोनों खुद भी मर गए। अब जनाबे ईसा से उस हवारी की, उस साथी की मुलाकात हुई। का क्या हुआ, सोने की ईंटें कहाँ गए? का डाकुओं ने लूट लिया, वो लेके चले गए। फिर आओ उन डाकुओं का नतीजा दिखाए तुम्हें। ये माले दुनिया के पीछे दौड़ने का नतीजा ये है, आओ दिखाए। लेके आए और लाने के बाद दिखाया तो तीनों इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, मर गए थे, मरे हुए लाशें पड़ी हुई थी, लाशें पड़ी हुई थी। का देखो झूठ का नतीजा ये है, हम तुम्हें हक की तरफ ले जा रहे थे, सच का नतीजा हमारी तरफ है। सच का रास्ता यह है कि पानी पे चलोगे, सच का रास्ता यह है कि हिरन को बुला के खाओगे, फिर उसे जिंदा कर दोगे। लेकिन अगर झूठ के रास्ते पे चले, माले दुनिया तो मिल जाएगा, लेकिन आखिर नतीजा यही होगा जो इन डाकुओं का हुआ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें, सच के साथ रहें, सच का साथ दें, सच के साथ रहें, सच बोलें। सच हमेशा सच होता है, झूठ हमेशा झूठ होता है। सच का रास्ता अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह तक पहुंचाएगा। झूठ का रास्ता शैतान का रास्ता है, शैतान तक पहुंचाएगा। वस्सलाम। मज़र